Assalamu alaikum, dear students. Again, I'm taking another short story from your content. That is, we have 6 short stories in our text, and हमने already क्या पढ़ा? The necklace पढ़ा, बोली भी पढ़ा. Now we are starting Abili. Then I'll go to your poetry section. उसके बाद we'll again switch over to grammar portion. So what I'm trying to do, I'm telling you that I'm trying to make the balance between your syllabus. और एक there is a request from my side. I'm your teacher, but still I just request to you that sometimes do respond to me. कभी मुझे बताइए कि मैम हमें ये प्रॉब्लम है या हमें ऐसा मसला हो रहा है. We are facing this type of problem. It's not necessary that you will revert to me in English language. अगर आप लोगों को लगता है that you are facing some issues in your text, in your grammar even, जो मैंने already आपको पढ़ाया हुआ है, उसमें आपको कोई मसला हो रहा है तो आप मुझे रिवर्ट करिए either through your audio message or through your written message, whatever way you want to convey it to me. I'm really I'll feel really obliged कि आप लोगों ने रिस्पॉन्ड दिया मुझे. It's not only about exams. एग्ज़ाम के टाइम आप फ़ोन करेंगे और बताएंगे. You need to respond to our content. हम क्या पढ़ा रहे हैं हमें चाहिए. हम डम्ब और डेफ को नहीं पढ़ा रहे हैं. तो अगर आप लोगों को मेरी पढ़ाई में या मेरी टीचिंग में कहीं पे लग रहा है कि हमें समझ नहीं आ रहा है या आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ आ रहा है, बोथ यू कैन गिव पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव रिस्पॉन्स, तो दैट आई एम ओपन टू दैट. तो आप डोंट वरी अबाउट योर सिलेबस, अबाउट योर ग्रामर. Inshallah, I'll be taking every portion of your. I have already done grammar. I have already done your prose section, major prose section I have done. So I'm now doing your short stories. Then we'll switch to your poetry. Then again to your grammar. उसके बाद we'll go for revision. So today I'll be taking your another topic, that is Abili. It's again a short story. It's written by Abdul Ghani Sheikh. ठीक है, Abdul Ghani Sheikh 1936 wrote his first story while he was a veterinarian stock assistant in Srinagar. That means he's still alive. तो बोलते हैं इसने अपनी पहली शॉर्ट स्टोरी तब लिखी when he was a veterinary assistant. He has worked as a school teacher, screenplay writer and journalist. Changes wrought by development or recurrent themes in his writings. With psychological intuition, his stories probe the social problems of common people, coping with a world in which justice is not always the outcome of action and are pragmatic, ironic and tinged with realism. बोलते हैं जो इसकी शॉर्ट स्टोरीज हैं, जो उसने पहली शॉर्ट स्टोरी स्टार्ट की थी, उसके बाद एक टीचर भी था. ही वॉज अ स्टॉक असिस्टेंट इन वेटनरी डिपार्टमेंट. ही इज़ फ्रॉम श्रीनगर. Perhaps he is from Srinagar, rather यहाँ पे it's not mentioned. Still till here it's not mentioned. तो he has been a screenplay writer, he has been a journalist. तो इसकी जो लिखाई है, किसी भी तरीके की लिखाई है, what they do, they bring change, abrupt change. और in his मतलब इसकी राइटिंग्स में कुछ ऐसी चीज, एक ऐसी चीज़ है जिससे बंदे को लगता है नहीं कोई चेंज आई है सोसाइटी में. और जो इसकी शॉर्ट स्टोरी है, दे डिपेक्ट द कॉमन प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल. जो सोसाइटी में कुछ प्रॉब्लम्स है, चाहे वो अंडर रूट है, चाहे वो ऑब्वियस है, वो सब ये सब उन चीज़ों को डिपेक्ट करता है अपनी शॉर्ट स्टोरीज में. Recognized as one of the foremost scholars of Ladakh, Abdul Ghani Sheikh has, apart from creative fiction, written on varied subjects, literature, history, philosophy and comparative religion. तो क्या है, तो यहाँ पे हमें पता चली that he is from लद्दाख. ठीक है, तो बोलते हैं इसने क्रिएटिव फिक्शन के अलावा, जो शॉर्ट स्टोरीज के अलावा, इसने बहुत सारे सब्जेक्ट्स मतलब जॉनर्स, आई विल टेल इट, नहीं सॉरी, इट्स सब्जेक्ट्स. लिटरेचर में भी लिखा है, हिस्ट्री में भी लिखा है, फिलोसफी में लिखा है एंड कंपैरेटिव रिलीजन. अमंग हिज बुक्स और 2 collections of short stories, जोजिला के आर पार एंड दो रहा, a biography on the famous Ladakhi pioneer. ठीक है, सोनम नोरबू, a historical novel वो ज़माना and romantic novel दिल ही तो है, which won the Jammu and Kashmir Cultural Academy's Best Book Award. His non-fictional books लद्दाख की कहानी and किताबों की दुनिया won 2nd and 3rd place in a state competition held for the children's centenary year in 1986. क्योंकि काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है इसके जम्मू एंड कश्मीर
कि लिटरेचर में, चाहे इसने शॉर्ट स्टोरीज़, नॉन फिक्शन, फिक्शन, फ़िलासफ़ी, हिस्ट्री, कंपैरेटिव रिलीजन के बारे में लिखा है। काफ़ी मास्टर कंट्रीब्यूशन रहा है इसका। तो इसमें कुछ दी हुई है उनके नाम कि क्या क्या इसने लिखा है। तो काफ़ी बहुत ज़्यादा मेजर मैग्नानिमस कंट्रीब्यूशन रहा है इसका टुवर्ड्स कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। जिस ज़माने में इसने लिखा है जम्मू एंड कश्मीर, वी हैड ऑल्सो लद्दाख। ओके, तो now we will go through the reading section. Nowadays, both boys and girls pursue modern education in science and technology for a better life. ठीक है, तो क्या बोल रहा आजकल के ज़माने में चाहे जवान लड़के हों, जवान लड़कियां हों, वो अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी में काफ़ी इंटरेस्ट दिखाते हैं और उसके लिए हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं. यंगर जनरेशन डज नॉट हेजिटेट टू ट्रैवल अब्रॉड इन परस्यूट ऑफ हायर एजुकेशन. बोलते हैं जो जवान जनरेशन है या यंग बच्चे हैं वो डरते नहीं हैं अगर उनको पढ़ाई के लिए बाहर जाना पड़े, चाहे अपने स्टेट से बाहर, पहले अपने विलेज से बाहर, फिर अपने डिस्ट्रिक्ट से बाहर, फिर अपने स्टेट से बाहर, फिर अपनी कंट्री से बाहर. तो फॉरेन कंट्री में भी जाना पड़ेगा पढ़ाई के लिए तो वो ईजिली जाते हैं, वो डरते नहीं है. लद्दाख इज़ नो एक्सेप्शन टू दिस ट्रेंड. बोलते लद्दाख में भी ये चीज़ आम हो रही है. But the reaction of oldies to this trend of the older illiterate women in particular is debatable. बोलते हैं लेकिन जो पुराने ज़माने, पुराने ख्यालात के लोग हैं, जब वो सुनते हैं कि नए नए बच्चे बच्चियां अलग जा रही हैं पढ़ाई के लिए, आउट ऑफ देयर विलेज, आउट ऑफ देयर इवन स्टेट्स, और एक टेरिटरी से दूसरी टेरिटरी पे जाते हैं, तो दे फील वेरी ऑड और वो काफ़ी परेशान भी हो जाते हैं. तो बोलते हैं दैट इज़ डिबेटेबल. क्या उनका वो चीज़ करना सही है कि गलत है? Abili also reacts to Rukhsana's pursuit for education at Srinagar in her own way, in addition to cinema and motor transport. क्या बोलते हैं? Abili is a character और वो character, Rukhsana is another character. रुखसाना के पढ़ाई के मामले में जब वो चाहती है कि मैं श्रीनगर जाऊँ, फ्रॉम लद्दाख टू श्रीनगर जाऊँ, तो वो भी कुछ अपने तरीके से रिएक्ट करती है इन रिएक्शन टू अदर एडवांसमेंट्स, जो बाकी विद टाइम जो एडवांसमेंट हो गई थी, जैसे सिनेमा आया था, जैसे मोटर ट्रांसपोर्ट आया था, तो उन चीज़ों की रिएक्शन के साथ उसने इस चीज़ पे भी रिएक्शन किया कि रुखसाना की पढ़ाई श्रीनगर में क्या सही है, क्या गलत है, क्या परेशान कुन है. गो थ्रू द शॉर्ट स्टोरी एंड सी फॉर योर सेल्फ whether or not Abile is justified in her reaction. तो बोल रहे हैं you read the story and see whether whatever reaction she has shown to the pursuit of Rukhsana's education in Srinagar, you see whether that is right or wrong. Do your grandparents react to such situations in your expected manner? This story by Abdul Ghani Sheikh portrays the problems of generation गैप. तो क्या बोलते हैं कि जो आपके घर में दादा दादी, नाना नानी, जितने भी मतलब बुजुर्ग हैं, क्या वो आप लोगों के साथ भी कभी किसी मसले पे जैसे आपने एक्सपेक्ट किया होता है वैसे ही रिएक्ट करते हैं, और डू दे रिएक्ट डिफरेंटली? तो ये जो स्टोरी है, दिस स्टोरी Abile इज़ अ डिपिक्शन ऑफ हाउ जनरेशन गैप क्रिएट्स प्रॉब्लम्स, और हाउ इज़ इट इन आवर सोसाइटी. कैसे हमारी सोसाइटी में जनरेशन गैप है और कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं या कितनी पॉजिटिविटी आती है हमारी जनरेशन में जनरेशन गैप से.